রাজ্য তথা গোটা দেশ জুড়ে প্রতি মুহূর্তে উঠে আসছে একের পর এক খবর। তার মধ্যে এমন কিছু খবর থাকে যেগুলি রীতিমতো শিরোনামে জায়গা করে নেয়। এই প্রতিবেদনে আপনাদের তেমনই একটি খবর জানাবো। উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ থেকে উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। জিহাদ, ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এবারে মুখ খুললেন জামিয়াত উলামা ই হিন্দের সভাপতি মৌলানা আরশাদ মাদানি। মাদানির বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, জিহাদকে কোনো একটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা ঠিক নয়। তার দাবি, মুসলিম হওয়া আর জিহাদি হওয়া এক বিষয় নয়, বরং যারা সমাজে ঘৃণা ছড়ায়, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ায়, তাদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তোলা উচিত। মাদানির বক্তব্যের মূল বিষয় হলো, কোনো অপরাধী যদি জিহাদি কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে তাহলে তাকে তার ধর্ম দিয়ে বিচার না করে তার কাজের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত। তিনি আরও বলেন, ধর্মের নাম ব্যবহার করে সমাজে ঘৃণা ছড়ানো অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এর ফলে শুধু একটি সম্প্রদায় নয়, গোটা সমাজের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিভেদের পরিবেশ তৈরি হয়। মাদানির বক্তব্যে বিশেষভাবে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ। তার মতে, যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে এবং এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে সমাজকে সতর্ক হওয়া দরকার। এই বক্তব্যের মাধ্যমে মাদানি মূলত বলতে চেয়েছেন, জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ধর্মীয় পরিচয় নয়, অপরাধ এবং হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া দরকার। তবে এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহলে বিতর্ক নতুন কিছু নয়, কারণ জিহাদ, ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত সংবেদনশীল। কোনো একটি ঘটনার সঙ্গে পুরো একটি সম্প্রদায়কে যুক্ত করলে তার প্রভাব সমাজে দীর্ঘদিন থাকতে পারে। মাদানির বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, দেশের মানুষের মধ্যে শান্তি এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখা। তার মতে, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে মানুষের দূরত্ব বাড়ানো উচিত নয়। একদিকে যখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা চলছে, ঠিক সেই সময় মাদানির এই মন্তব্য নতুন করে সেই বিতর্ককেই সামনে নিয়ে এসেছে। কি বলেছেন মৌলানা আরশাদ মাদানি, শুনবো। तुम उस किरदार को नहीं पेश कर सकते जिस किरदार को हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। यहीं से शेख उल हिंद पैदा हुए, यहीं से मुफ्ती किफायतुल्लाह पैदा हुए, यहीं से हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, यहीं से हिफ्जुर रहमान पैदा हुए। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान दी, आज कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए दुनिया जानती है। बदकिस्मती है, मुसलमान नहीं जानता कि उसके बाप दादा की तारीख क्या है, मुल्क की आजादी। दारुल देवबंद, आज ये आवाजें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून। तुम दारुल के बारे में, तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। क्या है दारुल? तुम क्या जानो दारुल किस चीज का नाम है? अगर दारुल न होता तो मुल्क की आजादी के अंदर रोड़े पड़ जाते। हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क के अंदर बाहर निकल करके अफगानिस्तान के अंदर आजाद हुकूमत कायम की, और उनके ज़हन के अंदर ये बात नहीं थी कि मुल्क के अंदर हुकूमत मुसलमान की होगी। उस आजाद हुकूमत के अंदर, सुनो इस बात को, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, अगर ये लोग उस हुकूमत की बुनियाद थे तो उसका सदर राजा महेंद्र सिंह प्रताप खुद बनाया था। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर मुस्लिम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, मुल्क के अंदर मुल्क के बसने वाले हिंदू और मुसलमानों की मिलजुली हुकूमत बनाना चाहते थे। उन्होंने जिस सेकुलरिज्म के ख्वाब को देखा था, आज मुल्क के अंदर फिरका परस्त ताकतें सेकुलरिज्म के लफ्ज को मुल्क के दस्तूर से निकाल कर फेंकना चाहती हैं। हमारे काबिल ने मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म का तस्वुर दिया है। कौन माइकल है जो इस तारीख का मुकाबला कर ले या इसको नकील है? कोई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। ये थी हमारी तारीख। हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब सऊदी अरब से, ताइफ से गिरफ्तार करके
अपने साथियों के साथ मिस्र भेजे गए और मिस्र से उठा करके उनको माल्टा की जेल के अंदर भेज दिया गया। कांग्रेस के लोग जानते थे उनकी इस तारीख को। कोई और माई का लाल हिंदुओं के अंदर नहीं है जिसने मुल्क की आजादी के लिए ये कुर्बानी दी हो कि 7 समंदर पार 4 साल उसने इंग्रेज की कैद मशक्कत को काटा है। अगर काटा है तो दारुल के तालिब इल्म ने काटा है। বিশেষজ্ঞদের মতে জিহাদ একটি গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যা, তাই কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের অপরাধে জড়িত থাকলে তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে কোনো অপরাধের জন্য পুরো একটি ধর্ম বা সম্প্রদায়কে দায়ী করার থেকেও বিরত থাকা দরকার। মাদানি তার বক্তব্যে মূলত ঘৃণার রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তার বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মত আলাদা হতেই পারে, তবে একটি বিষয় পরিষ্কার যে জিহাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে দেশে আবারও জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। কি বলেছেন তিনি, চলুন শুনে নিই। तुम उस किरदार को नहीं पेश कर सकते जिस किरदार को हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। यहीं से शेख हिंद पैदा हुए, यहीं से मुफ्ती किफायतुल्लाह पैदा हुए, यहीं से हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, यहीं से हिफ्जुर रहमान पैदा हुए। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान दी आज कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए दुनिया जानती है। बदकिस्मती है मुसलमान नहीं जानता कि उसके बाप दादा की तारीख क्या है, मुल्क की आजादी। दारुल देवबंद आज ये आवाजें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून। तुम दारुल के बारे में तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। क्या है दारुल? तुम क्या जानो दारुल किस चीज का नाम है? अगर दारुल न होता तो मुल्क की आजादी के अंदर रोए पड़ जाते। हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क के अंदर बाहर निकल करके अफगानिस्तान के अंदर आजाद हुकूमत कायम की और उनके ज़हन के अंदर ये बात नहीं थी कि मुल्क के अंदर हुकूमत मुसलमान की होगी। उस आजाद हुकूमत के अंदर सुनो इस बात को, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, अगर ये लोग उस हुकूमत की बुनियाद थे तो उसका सदर राजा महेंद्र सिंह प्रताप खुद बनाया था। इसका मतलब ये है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।